Assalamu alaikum and a very good morning to every one of you. I am Asad Imran Malik. I am the founder and master trainer at AIM Professionals. Today I am going to give you a detailed lecture on the importance of soft skills in today's marketplace. First of all, we will discuss about the soft skills. Basically, these are considered as personal attributes that determine the working capabilities of an individual. They facilitate the individual to develop relationship with people, creates an element of trust, and makes you more productive in the workplace. As per the new trend of 2022, they are now being considered highly in demand in the corporate world. They also determine the fact how an individual handle himself and represent his character by interacting with people. Now we will discuss about the importance of the soft skills. As per my point of view, soft skills are essential whether we interact with people around us or in a person's life. Soft skills can be supported by the help of the following arguments. Here, I would like to highlight the following facts. Number one, the modern workplace in interpersonal. Number two, soft skills provide the opportunities of career progression and promotion. It builds up your personality and makes you stand apart. They are highly in demand by both clients and as well as different companies. And last but not the least, today the workplace relies on soft skills rather than theoretical knowledge. Now let's discuss about the soft skills that are highly in demand today. Number one, communication. It involves both oral and written. Number two is creativity. Number three is problem solving. Next is positivity. And after that, we come across teamwork and smart work attributes. Why we need to improve our soft skills? It is generally noted that many people are strong in certain soft skills while they are fragile in others. For example, someone might be a great public speaker and he may be able to command a room full of people while on stage, but he will be struggling to interact with people at any networking event. कहने का मकसद ये है कि एक बंदा जो है वो एक बहुत अच्छा स्पीकर हो सकता है, वो उसके अंदर एक इंटरेक्शन पावर हो सकती है, लोगों को कन्विंस करने का तरीक़ेकार हो सकता है, लेकिन वो नेटवर्किंग के अंदर बहुत पुअर होगा, यानी कि उसको एक किसी भी लोगों से मिलने के अंदर ना बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा. तो यहाँ कहने का मकसद ये है कि सॉफ्ट स्किल्स जो होते हैं ना, इनको ये आप जब जॉब में होते हैं ना, फिर ये डेवलप होते हैं आहिस्ता आहिस्ता. तो इनके ऊपर कमांड जो होती है ना, वो बहुत ज़रूरी है. इनको विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने लर्न करना होता है ताकि आप एक कॉर्पोरेट इन प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में ख़ुद को एक्सेल कर सकें. अगर कॉर्पोरेट में नहीं भी जाना तो एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आपने एंटरप्रेन्योर बनना है या कोई आपने बिजनेस इस्टेब्लिश करना है तो उसके अंदर भी आपको सॉफ्ट स्किल्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स जो होते हैं ना, वही आपको आगे क्रिएटिव करते हैं, जिसमें आप अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, चीज़ों को, आइडियाज़ को इम्प्रूव करते हैं, सोचते हैं, रिसर्च करते हैं, बिल्डअप करते हैं, अपने प्लान बनाते हैं, और ये सारा कुछ जो होता है ना, ये सॉफ्ट स्किल्स की बदौलत ही होता है. थ्योरेटिकल नॉलेज तो होती है, नो डाउट, वो तो आपका एक रोल प्ले करती है बहुत ज़्यादा, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स की अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपने उसी के थ्रू अपने जो सारा कुछ है वो उसको बिल्डअप करना है. अब हम आते हैं हार्ड ट्रुथ्स रिगार्डिंग सॉफ्ट स्किल. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द हार्ड ट्रुथ्स रिगार्डिंग सॉफ्ट स्किल्स. The beauty of soft skills is that they are highly transferable, like creativity, responsibility, and excellent communication skills. They can be applied to any job. अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि राइट सेट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स कैसे डेवलप करने हैं. मैं खुद एक HR प्रोफेशनल हूँ
और मैं यहाँ पे सजेस्ट ये करता हूँ कि ये किया जा सकता है कि एक सर्वे के थ्रू, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस के थ्रू, या फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल्स के थ्रू, जिससे हम लोग ये डिटरमिन कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस नौयत के या किस नेचर के सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है। अब आपने अगर देखना है, हम अगर देखें रिपोर्ट 2019 लिंक्डइन की, उसमें तकरीबन 89% ऑफ रिक्रूटर्स ने ये कहा कि हम लोग जो हायर करते हैं ना, उसमें रिटेंशन रेट जो होता है ना, टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है। वो उसमें सबसे बड़ी इशू हमें ये आता है कि लोग जो होते हैं ना सॉफ्ट स्किल्स को लैग करते हैं। यहाँ पे आपको बात कॉन्सेप्ट 19 की रिपोर्ट के मुताबिक रिक्रूटर्स का मानना ये है कि जो हायरिंग डिसीजंस होती हैं ना, वो बैडली इम्पैक्ट तब करती हैं जब आपका जो रिसोर्स आपने हायर किया हुआ है उसमें अगर सॉफ्ट स्किल्स की नहीं है। इस वजह से हायरिंग्स जो होती हैं बहुत डिस्टर्ब होती हैं, टर्नओवर रेट बहुत ज़्यादा होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट में आपको बताऊंगा कि सॉफ्ट स्किल्स क्यों इम्पॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे। नंबर 1, दे इम्प्रूव एम्प्लॉयबिलिटी। HR प्रोफेशनल्स कंसिडर द वैल्यू ऑफ स्किल्स। जो HR प्रोफेशनल्स होते हैं वो सॉफ्ट स्किल्स की वैल्यू को बहुत कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो लोग देख रहे होते हैं बेस्ट रिसोर्स जिससे काम करवाया जा सके। HR में रिक्रूटिंग का मतलब ही यही होता है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, और वो उनका यही पर्पस होता है कि बेस्ट हायरिंग डिसीजन तभी हो जब एक राइट स्किल सेट का बंदा उनको मिले। नंबर 2, इवैल्यूएशन ऑफ सक्सेस। दे इवैल्यूएट सक्सेस। हमारा माइंडसेट ये बिलीव करता है इस बात के ऊपर कि हैविंग गुड ग्रेड्स एंड अ ग्रेट पोजीशन इन आवर एग्जाम मैटर्स अ लॉट। लेकिन इसके बाद क्या होता है, हम लोग कॉर्पोरेट लाइफ या फर्दर स्टडीज़ में सक्सीड नहीं हो पाते। ये इसी वजह से होता है कि यहाँ क्रैमिंग की जाती है, यहाँ हमें बताया नहीं जाता कि हमने मेंटल कैपेबिलिटीज़ को कैसे डेवलप करना है। इस पर्पस के लिए आपको अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ को बहुत ब्रॉड करना होता है। मैं अब आपको यहाँ पे सुजेस्ट यही करूँगा कि आप ऑल्टरनेटिव सोर्सेज से भी लर्न करें। ये नहीं कि जस्ट क्रैमिंग पे बिलीव करें। आप अपने सॉफ्ट स्किल्स को कम्युनिकेशंस की वेरियस किताबों से, डिफरेंट मोटिवेशनल स्पीकर्स जो रिनाउंड हैं, यानी कि जिनके नाम हैं मार्केट के अंदर, उनको सुने, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स, उससे जज करें कि उनकी बात में कितना इम्पैक्ट है। Only then you will be able to determine the fact that what you have to do. आपको ज़रूरी है, अगर आपने एक्सेल करना है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, तो आपको इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर वर्क करें, और ताकि आप इन फ्यूचर या तो एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल बन सकें या एज ए एंटरप्रेन्योर आप इमर्ज कर सकें। देखिए, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, कोई चाहे कुछ भी आपने करना है अपनी लाइफ के अंदर, आइदर या तो एंटरप्रेन्योरशिप है, या आपने कोई कॉर्पोरेट लाइफ में जाना है, या आपने कोई पढ़ाना है, या आपने किसी मार्केट प्लेस में कम्युनिकेट करना है। सॉफ्ट स्किल्स के बगैर कुछ नहीं है। सॉफ्ट स्किल्स में देखो, हम लोग क्रिएटिव हैं, अगर बेचना आता है, देखो, हाँ, एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। इनोवेटिव था ना ये, जैसे हमारा आइडिया, एक मैं आपको बताता हूँ, वाटर पराठा वाले थे जैसे, इसी तरह ये एयरलिफ्ट की सर्विसेज थी। ये कंपनीज इनोवेटिव थी। ऊबर क्रीम का हम देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मॉडर्न चीज़ों को ये इंट्रोड्यूस इन्होंने करवाया, जिसके अंदर इन्होंने इन्होंने वो लेकर आए, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन के साथ, यानी कि इंटरेक्ट लोगों को कर दिया, यानी कि हम लोग ईज़िली टैक्सीज़ वगैरह या चीज़ें मंगवा सकते थे। तो कहने का मकसद ये है कि आपको क्रिएटिविटी जो होती है, ये आप इसी के थ्रू ही कर सकते हैं, सॉफ्ट स्किल्स के थ्रू। ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट मैं आपसे बात करता हूँ कि डेवलपिंग ग्रेट लीडर्स। सॉफ्ट स्किल्स मार्क कस्टमरी रिप्रेजेंटेटिव्स आउट फॉर फ्यूचर पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी
One's capacity to connect with others, decide their outcome in driving a group to complete a venture. Beyond that, it drives one's capacity to show responsiveness, comparison to clients, a genuine obligation to determine the issues or serve their. Next point, I would like to tell you about your hard skills that requires to excel in your career. Indeed, even with the great exhibit of specialized ability which might secure your opportunity, these soft skills will empower you to succeed. Your capacity to team up, coordinate and connect with others will assist you in turning out to be more successful. यहाँ पे हमने बात की थी स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्टूडेंट्स के लिए सॉफ्ट स्किल्स क्यों ज़रूरी हैं. अब मैं नेक्स्ट पॉइंट में बिजनेस में सॉफ्ट स्किल्स क्यों ज़रूरी हैं. सॉफ्ट स्किल्स आर नीडेड अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज. फॉर एग्जाम्पल, solid relational abilities are required. Whether you are a medical caretaker, a stylist, a specialist, etc. Fostering each delicate expertise accompanies its own benefits. For example, further developing correspondence will assist you in building up a strong rapport and relationship with your subordinates. Now, I will be discussing about के benefits क्या होते हैं सॉफ्ट स्किल्स की डेवलपमेंट के इन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर एम्प्लॉयज़ के लिए क्या बेनिफिट्स होते हैं. नंबर 1, इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी. सॉफ्ट स्किल्स के अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप सॉफ्ट स्किल्स को इनकलकेट करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होता है. नंबर 1, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है. एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी, उनका टास्क्स का मैनेजमेंट सिस्टम और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो जाती हैं सॉफ्ट स्किल्स के इंट्रोडक्शन से. यानी कि अगर आप उनको सॉफ्ट स्किल्स आप सिखा देते हैं कोई भी, यानी कि नेगोशिएशन सिखा देते हैं, रिसर्च के सिखा दें, या आप उसमें फीडबैक सिखा दें, या आप क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है. उसका इम्पैक्ट ये होता है कि उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है और वो अपने जो असाइनमेंट्स या टास्क होती हैं उनको अच्छे तरीके से सरअंजाम देते हैं. नंबर 2, इम्प्रूव टीम वर्क. टीम वर्क इम्प्रूव होता है. फॉर अ बिजनेस टू वर्क सक्सेसफुली, इंडिविजुअल्स शुड फंक्शन एडमायरेबली टुगेदर टू अकॉम्प्लिश अ शेयर ऑब्जेक्टिव. द नेचर ऑफ वर्क इम्प्रूव्स व्हेन इंडिविजुअल्स यूटिलाइज देयर सिंगुलर एसेट्स एंड एबिलिटीज टुगेदर इन अ कॉर्पोरेशन. अगर बिजनेस ने एक सक्सेसफुली परफॉर्म करना है तो सबको एक साथ टीम में चलना चाहिए, यानी कि कलेक्टिव एफर्ट को प्रमोट करना चाहिए. काम की नोयत जो होती है ना, उसकी प्रोडक्टिविटी लोगों की, आप एक ऐसा, यानी कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. यहाँ पे हम लोग 5-6 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है. 5-6 लोग हम बैठे हुए हैं और हम लोगों ने, मैंने आपको एक टास्क असाइन किया है. उस टास्क के अंदर मैं आपको ये कहता हूँ कि आपने मुझे रिक्रूटमेंट सिस्टम आपने बना के देना है. उसमें हर एक बंदे को आपने डेलीगेट करना है, यानी कि वो एक पे उसको देखेगा, SOPs बनाए, उसकी चीज़ों को देखे, वो सारा कुछ आपने टीम वर्क के थ्रू करना है. और ये तभी होता है जब आप एक आपस में कोऑर्डिनेशन करें प्रॉपरली. टीम वर्क के अंदर आप बैठ के आइडियाज़ को शेयर करें, चीज़ों को देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसके अकॉर्डिंगली आपने सारा कुछ लेके चलना होता है. तो इससे क्या होता है, टीम वर्क इम्प्रूव होता है. टीम वर्किंग के अंदर आपके आइडियाज़ अच्छे आपके शेयरिंग होती है और भी बहुत कुछ आप अचीव करते हैं इसके थ्रू. इम्प्रूव रिटेंशन रेट. रिटेंशन रेट जो एम्प्लॉय रिटेंशन होती है वो इम्प्रूव होती है. पीपल वांट टू वर्क हैप्पीली एट एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वैल्यूज देयर एम्प्लॉयज़ एंड इन्वेस्ट देयर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. रिटेंशन रेट जो होते हैं ना, यानी कि एम्प्लॉय का जो टर्नओवर रेट होता है वो इम्प्रूव होता है. लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को हैप्पीली वहाँ पे उसका जो अपना स्टे होता है उसको वैल्यू करते हैं और वहाँ पे अच्छे तरीके से परफॉर्म भी करते हैं जो उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं. इसका फ़ायदा क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस को क्या फ़ायदा होता है. ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा ये होता है कि उनकी रिक्रूटमेंट कॉस्ट और जो टर्नओवर होता है वो डिक्रीज़ होता है. ठीक है, ये
अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर L&D प्रोग्राम्स यानी कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, यानी कि आप अपनी, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे सिनेरियो को समझने की कोशिश करें। एम्प्लॉयज़ को अगर बेहतर तरीके से लेके जाएंगे ना, तो तब ही आप इसमें इनको यहाँ पे बेहतर कर सकते हैं। अगर आप उनको इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर, तभी आप उसको अपने एम्प्लॉयज़ को बेहतर तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं। Improved leadership. Soft skills prepare employees for leadership positions because specific skills are needed, such as active listening, empathy, etc. This is important because many people left their jobs due to micromanagement and poor managers who lack leadership skills. Soft skills जो होते हैं ना, एम्प्लॉयज़ को सीनियर रोल्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ यहाँ पे, अगर आप एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं एज अ मैनेजर या एग्जेक्टिव या एक असिस्टेंट लेवल के ऊपर, तो वहाँ पे आपको सॉफ्ट स्किल्स ने ही आपकी हेल्प करनी है आपको आगे ग्रो करने के लिए। देखो यहाँ पे सिनेरियो ये होता है कि लोग टर्नओवर रेट क्यों आता है, समटाइम्स बात ये होती है अगर आपका मैनेजर्स आपके साथ कोऑपरेटिव नहीं है या आप माइक्रो मैनेजमेंट है, तो उसकी वजह से टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है। लोग जॉब्स इसलिए छोड़ते हैं कि वहाँ पे आपकी चीज़ के एफर्ट्स, आपके आइडियाज़ को वैल्यू नहीं किया जाता। तो अगर आपने अपने लीडरशिप रोल के लिए अपने आप को एक्सेल करना है या आगे जाना है, तो आपको अपने लीडरशिप स्किल्स के ऊपर भी बेहतर तरीके से काम करना पड़ेगा। इंक्रीज्ड workplace communication. Effective communication between staff increases when consequently reduces the risk of information becoming distorted. This allows the company to operate more smoothly and more effectively. Workplace की communication बेहतर होती है, टीम वर्क होता है, communication gaps रिमूव होते हैं, इस सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स की वजह से। ठीक है, अच्छा जी, अब हम यहाँ पे लास्ट में बात करेंगे कि आप सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप कैसे कर सकते हैं, किस तरह आपने इसको डेवलप करना है और कौन आपको फैसिलिटेट कर सकता है सॉफ्ट स्किल्स के डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स हैं मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। नंबर 1, दूसरों को सुने बात करने से पहले। कोई भी कम्युनिकेशन करने से पहले जो सामने वाला बंदा है उसकी बात पहले सुने। इससे क्या होता है कि आप एक बंदे को वैल्यू कर रहे होते हैं, डिसेंट एसोसिएशन आपके साथ बनती है उसकी, और आप उसको भी साथ ये एहसास होता है कि आप उसको सुन रहे हैं, उसकी वैल्यू कर रहे हैं। चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपका बॉस है, चाहे आपका कोई भी मेंटोर है, सबसे पहले अपने लिसनिंग स्किल्स के ऊपर तवज्जो दें। लोगों को पहले उसकी बात को सुने, फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करें। ये नहीं कि आप साथ ही अपने आर्गूमेंट्स बीच में ही देने शुरू कर दें। ऐसे क्या होता है कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो कोशिश किया करें कि अपने पहला बंदा है उसकी बात पहले सुनी जाए। नंबर 2, मेंटेन गुड आई कांटेक्ट। दूसरे बंदे के साथ जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो डू नॉट लुक हियर एंड देयर, मेंटेन प्रॉपर आई कांटेक्ट विद दैट पर्सन। It gives you the sense of confidence and makes you more effective and to be heard properly. Monitor your body language and observe others. Be conscious of your body language when you interact with others. Ensure you send out positive vibes and do not come across as defensive or rude. अपनी बॉडी लैंग्वेज का ख्याल रखें, ऑब्जर्व करें। देखो मैं आपको यहाँ पे बात बताता हूँ, एक एंगर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के मतलब मैं आपसे एक बात करूँगा। यहाँ पे आप पहले एक बंदे की बात सुन लें, अगर आपको नहीं पसंद आती तो आप उस पर बाद में उसको कमेंट कर लें, लेकिन ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन डू नॉट इंटरप्ट दैट पर्सन, क्योंकि दिस एज रूड। ठीक है, आप अपने बॉडी लैंग्वेज का ख्याल रखें और आप यानी कि अपने आप पे इंश्योर करें कि आप पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं और डिफेंसिव या रूड ना हो। यहाँ पे मैं कुछ करना चाहूँगा। एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है जिसने सुजेस्ट किया था कि बाय 2025 कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, पीपल मैनेजमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस वुड बी among the most important skills that will be required in the workplace.
The significance of these delicate abilities is frequently underestimated, and there is a definitely less preparation accommodated them than hard abilities like coding. Associations appear to expect individuals know how to act at work and the significance of abilities. देखें इकोनॉमिक फॉर्म्स की, जिसने बताया है कि बाय 2025 सॉफ्ट स्किल्स बहुत हाईली इन डिमांड होंगी, जिसमें आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, पीपल मैनेजमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। ये बहुत वैल्यू करेंगे वर्क प्लेस के अंदर, क्योंकि देखो एक अगर आप लोग अपने आप को विद द पैसेज ऑफ टाइम नहीं चेंज करेंगे ना, तो इवेंचुअली हम लोग फिर पीछे ही रहेंगे। वक्त के साथ साथ बदलना है खुद को, नई नई टेक्नोलॉजीज़, R&Ds, रिसर्च में अपने आप को बिल्डअप करें, ताकि इन फ्यूचर भी आगे मोर सीनियर रोल्स के लिए भी एक्सेल कर सकें। या अगर आपने एंटरप्रेन्योर बनना है या कुछ भी करना है, तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हों। थैंक यू वेरी मच।